Hello students, welcome back to maths class. In the last class we have studied about nature of roots, and if real roots exist, then we also learned how to find out its roots by applying quadratic formula. Today we will learn how to find the value of k when the nature of root is given, and also we will see application of quadratic equation. Okay? Before we start the class, होमवर्क चेक कर लेते हैं. ओके, नाउ ऑन योर स्क्रीन practice exercise question number 1 is given. Question has been taken from exercise 4.2 and the question was find the root of following quadratic equations by factorization. And इसके 5 पार्ट्स थे और इसके 5 पार्ट्स के आंसर्स आपके स्क्रीन पे हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन. फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन quadratic equations if they exist by the method of by applying quadratic formula. You have to find the roots of quadratic equation. Question number 2 means you have to solve all the parts of question number 1 but by the method of applying quadratic formula, and its answer is on your screen. Next, practice question number 3. The question had been taken from exercise 4.4 and the question was find the nature of roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. इसके 3 पार्ट्स थे और इसके आंसर्स आपके स्क्रीन पे है. फर्स्ट क्वेश्चन इज रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट. सेकंड वन इक्वल रूट्स एंड इक्वल रूट्स आर 2/√3 and again 2/√3, and third one distinct root 3 plus √3/2 and second one is 3 minus √3/2. ये तो रहा आपका होमवर्क असाइनमेंट्स. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर. Our first topic is to find the value of k when the following quadratic equations have equal roots. Means nature of root is given. आपको given है, मूलों की प्रकृति दी गई है. कैसे हैं roots? मूल क्या है? समान है. Roots are equal. You have to find the value of k. Please note down this question. Okay, we will solve it. Okay, our first question is x square minus 2kx plus 7k minus 12 equals to 0. Okay, here at first you find what is a, b and c. Here a is 1, a equals to 1, b is x को छोड़कर जितने भी नंबर है सारे b है, that means minus 2k, and c rest of the equation, that is 7k minus 12 is c. 7k minus 12 is c. Clear? Next, what is given? It is already given that equation has real roots. Equation has equal roots. Equation has equal roots. Okay, we already know equations के roots कब equal होंगे? मूल समान है, समीकरण के मूल समान है, ये दिया गया है. That means d equals to 0. ये कब होगा? Roots equal कब होगा? जब d equals to 0 है. What is d? d is discriminant and d is b square minus 4ac. Clear? Now we will substitute the value of b, a and c. Clear? So b is minus 2k whole square minus 4, a is 1 and c is 7k minus 12. A equals to 0. Now square it. So 2k whole square minus 2k whole square will become 4k square. 4 ones are 4, 4 sevens are 28, minus into minus plus 12 fours are 48. That is equals to 0. Now look at this equation carefully. You have obtained another quadratic equation whose variable is k. Here also it is also a quadratic equation.
but its variable was x. Here the variable is k. Okay, just try to simplify it. सबसे पहले इसको हम simplify करेंगे तो 4, 28 and 48, that means it is divisible by 4. So we will divide both side by dividing both side by 4. Clear? When we divide it, we will get k square 7k plus 12 equals to 0. Clear? Okay. Now in this stage you have two options. Either you can solve by factorization method or quadratic formula. लेकिन आपको ये देखना है whether factorization method is applicable or not. Clear? Let's check 12. 1 into a into c. a is 1, 1 into c, that is 12. 12 कब कब आता है? 3 4 जा 12. 3 plus 4 7. तो हमें आना है माइनस, दैट मीन्स हमें -7 लगाना है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था और इसके आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, यू नो वेरी वेल. नाउ तो -7 कैन बी रिटन एज -3k -4k एंड इन दिस टू टर्म्स we can take out common k. हमने कॉमन लिया है तो k -3. Here 4 is common, तो 4 हमने बाहर कॉमन लिया है तो k plus will become minus and 3. 4 3 is 12. तो यहाँ पे फिर से देखें k -3 कॉमन है तो हमने k -3 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा k -4 equals to 0. It means k -3 equals to 0 and k -4 equals to 0. So when you transpose 3 to the right side, you will get k equals to 3 and k equals to 4. This is your answer. Clear? चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज सेम. हियर a is k plus 4. Clear? b is k plus 1, coefficient of x, and c is 1. Again equation has, quadratic equation has real equal roots. ओके, एक बात बोलना चाहूँगी, अगर यहाँ पे इक्वल की जगह पे, अगर यहाँ पे इक्वल के स्थान पे आपको अगर यहाँ पे रियल होता, ओनली रियल रूट्स, इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ऐसे होता तो आप क्या करते? तो रियल रूट्स इज पॉसिबल व्हेन d इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे आपको इक्वल टू किस प्लेस पे आपको लगाना होता? ग्रेटर और इक्वल्स टू. सारी जगह पे आपको ग्रेटर और इक्वल्स टू आता. क्या? तो फिलहाल इस केस में हैज़ इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स समीकरण के मूल समान हैं, मूल समान हैं. Therefore this means d equals to 0, और d equals to 0 means b square minus 4ac equals to 0. Now we will substitute the values of b, a and c. Simple. So b is here, b is k plus 1 whole square minus 4a. What is a? A is k plus 4 into c. c is 1. c 1 है. ओके, k plus 1 whole square, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? हमारे पास आइडेंटिटी है a plus b whole square. तो a square means k square plus 2ab, 2 1s are 2 into k, 2k plus 1 square. 1 square means 1 minus 4 1s are 4, या 1 4s are 4, 4 into k minus 4k minus plus minus into plus minus 4 4s are 16. और k square लाइक टर्म्स देखिए, लाइक टर्म्स आपके पास है प्लस 2 एंड माइनस 4k. दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2k. इन दोनों को देखिए, लाइक टर्म्स है हमारे पास प्लस 1 एंड माइनस 16. सब्ट्रैक्ट इट, you will get minus 15 equals to 0. Again you obtained another quadratic equation, okay, whose variable is k. Now I am going to apply that one, factorization method. आप इसको quadratic formula से भी कर सकते हो. तो 15 है, तो देखते हैं 3 5 are 15, 3 5 are 15 and 2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2. दैट मीन्स 3 विल बी पॉजिटिव, 5 जो होगा नेगेटिव होगा. तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 5k माइनस 15 इक्वल्स टू 0. और
टेक आउट कॉमन k प्लस 3 माइनस 5, कॉमन होगा 5, k माइनस कॉमन लिया है, इट विल बिकम प्लस 5 3 ज़ा 15 और k प्लस 3 कॉमन k प्लस 3 k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मीन्स k प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और k minus 5 equals to 0. So your answer is k equals to minus 3 and k equals to minus 5 will become 5. समझ गए होंगे आप? ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बाद में होमवर्क में दूंगी. क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसे कहेंगे हम अनुप्रयोग, द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग कहेंगे हिंदी में. ओके टुडे वी आर डीलिंग विद एज प्रॉब्लम. ओके आयु से संबंधित प्रश्न. द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीन पर देखिए. 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है. उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए. ओके जब भी हम एज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो हम जब भी एज्यूम करेंगे हम प्रेजेंट एज को एज्यूम करेंगे. ओके मान लीजिए अभी आपकी एज, आप क्लास 10th में हो तो 15 या 16 आपकी एज होगी. मान लीजिए आपकी एज 15 है. ओके तो अगर मैं पूछती हूँ कि आफ्टर 5 इयर्स आपकी एज कितनी होगी, आप फट से बोलोगे 20 इयर्स. ये आपको 20 मिला कैसे? 15 प्लस 5. क्या ये हो गया आफ्टर 5 इयर्स. अगर मैं पूछती हूँ आपको कि आपका बिफोर 3 इयर्स एगो आपका एज कितना था, 3 साल पहले आपके एज कितना था, तो आप क्या करोगे? एगो 3 इयर्स एगो 3 वर्ष पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप बोलोगे मेरी एज थी 12. कैसे? अभी वर्तमान एज, प्रेजेंट एज कितनी है आपकी? 15 है. तो 3 वर्ष पहले आपकी कितनी हो गई? 15 माइनस 3. ओके तो इससे मालूम होता है, हमें पता चलता है कि एगो आफ्टर. ओके आफ्टर मीन्स पश्चात. जब भी आफ्टर होगा तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे उस एज के साथ, और जब भी एगो होगा पहले होगा तो हम करेंगे प्रेजेंट एज के साथ माइनस करेंगे. मान लीजिए आपकी एज x है, प्रेजेंट एज आपकी x है, तो आफ्टर 5 इयर्स योर एज विल बी x प्लस 5. ओके बिफोर 3 इयर्स आपकी एज कितनी थी? दैट इज x माइनस 3. कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्लियर हो गया आपको? ओके अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है रहमान्स, you have to find the Rahman's present age. Let us assume, let Rahman's present age equals to x years. Okay? रहमान की वर्तमान आयु equals to x years. क्या? अब क्वेश्चन में देखिए सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago. तो आप आगे क्वेश्चन में कंडीशन में बढ़ने से पहले सबसे पहले आप देखिए 3 years ago आप रहमान की एज कितनी होगी वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है तो 3 years ago मीन्स 3 वर्ष पहले रहमान्स एज कितनी थी? प्रेजेंट एज है x, तो 3 साल पहले कितनी होगी? एगो है -3 इयर्स. क्लियर? अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एंड 5 years फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 5 years. क्लियर? आफ्टर 5 years मीन्स 5 वर्ष पश्चात का मतलब ये होता है प्लस.
पश्चात अब बताइए रहमान की एज कितनी हो जाएगी? रहमान्स एज, रहमान की आयु, ओके, रहमान की आयु दैट इज x प्लस 5 years, ओके। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ बाय कंडीशन, बाय कंडीशन। अब क्वेश्चन पे आइए। सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago, 3 years ago उसका एज कितना था? x minus 3 मीन्स इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल विल बी 1 by x minus 3 and 5 years from now means after 5 years his age will be x plus 5, तो इसका रेसिप्रोकल 1 by x plus 5 is मतलब equals to 1 by 3। अब आप इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका जस्ट क्रॉस कर लीजिए, दैट इज x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए x plus 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए x minus 3 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो x minus 3 x plus 5 इक्वल्स टू 1 by 3। यहाँ पे देखिए x और x 2x प्लस इन दोनों को माइनस कीजिए 2। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछली बार बताया था, बहुत इजी है, x इंटू एक्स स्क्वायर, देन आपको प्लस लिखना है -3 प्लस 5x, देन अगेन सेम नंबर बट मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स इक्वल्स टू 1 by 3, ठीक है। और 2x प्लस 3, 2x प्लस 2 ये पूरा उठ के यहाँ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, ओके। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से बाय एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, प्लस 2x प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 3 15, ये पूरा टर्म उठकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चला जाएगा, ओके। तो हमें मिला जस्ट मल्टीप्लाई इट, तो 6x प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ 1 यू विल गेट द सेम रिजल्ट 2x minus 15, ओके। इस पूरे को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 15, 2x प्लस 6 को यहाँ लेके जाओगे माइनस 6x माइनस 15 ऑलरेडी यहाँ है, प्लस 6 को यहाँ ले जाओगे तो -6 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स को देखिए, इन दोनों को माइनस करना है तो -4x, इन दोनों को ऐड करना है -21 इक्वल्स टू 0। नाउ यू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू हैव, आपके हाथ में दो मेथड्स है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस, ओके। आपने यहाँ तक कर लिया, हमें मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से हमने सॉल्व किया है, तो -4 को हम लिखेंगे -7 प्लस 3x, और इसको जब हम कॉमन लेंगे x कॉमन और यहाँ पे होगा 3 कॉमन, तो हमें मिलेगा x -7 और x -7 देखिए कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लिए तो x प्लस 3, दैट मीन्स x -7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और x का वैल्यू मिला x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -3। बस -3 हमारा एज, कभी भी एज जो है माइनस में नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपकी एज कितनी है, -2, अब नहीं बोलोगे, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, आपको लिखना है। सो x इक्वल्स टू, हम ये वैल्यू लेंगे x इक्वल्स टू 7। सो रहमान्स एज, प्रेजेंट एज इज 7 years, रहमान की वर्तमान आयु हो गई 7 years। इसको हमको वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन इसलिए क्योंकि आपको चेक करना है, इसमें कहा गया है कि बिफोर 3 years ago, अब बताइए रहमान की एज है 7, तो 3 years पहले उसकी एज कितनी थी? 3 years, ओके। 7 - 3 कितना होगा? 4। इसका रेसिप्रोकल 1 by 4 एंड 5 years from now मीन्स एज, अभी जो प्रेजेंट एज है उसका x है, तो आफ्टर 5 years हो जाएगा 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 इज 12, 1 by 12। और इन दोनों को ऐड करने से, इसका जो रेसिप्रोकल को ऐड करोगे तो आपको आना है 1 by 3, आपको आंसर आना है, ओके। यहाँ देखिए 4 है, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 3 by 12 प्लस 1 by 12, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 4 by 12, तो 4 1 4, 4 3 12, आपको आंसर मिला
1/3. दैट मीन्स आपका ये आंसर करेक्ट है. ओके ओके स्टूडेंट्स, come to the next question. The next question is on your screen. It has been taken from exercise 4.1, question number 2, third part. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. Find Rohan's present age. रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है. उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी. रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है. ओके अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2 पर्सन्स हैं, एक रोहन है, नेक्स्ट वन इज मदर. ओके तो इसमें आप पहले से सीख के आए हो कि जब 2 अननोन क्वांटिटीज होता है, 2 कैरेक्टर होता है, तो हम एक x लेते हैं, एक y लेते हैं. ओके तो हम 2 मेथड हमारे पास x और y लेके भी चल सकते हो, या फिर क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम दोनों कुछ भी गलत नहीं है. आप x और y भी लेके चल सकते हो और x केवल x लेकर भी चल सकते हो. ओके मैं दोनों मेथड करके दिखाऊंगी आपको ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए. ओके चलिए फर्स्ट let Rohan's present age. Okay, Rohan's present age equals to x years. Clear? रोहन की वर्तमान आयु इक्वल्स टू x. क्लियर? अब आते हैं हम इसके मदर के पास. ठीक है, मदर्स एज. Mother's age, mother is 26 years older than, हमेशा मैंने बोला है than से शुरू कीजिए, than him. Him means Rohan's age. Rohan's age is x, then older. Older means होता है अधिक है, plus 26. ओके ये मिल गई हमें मदर्स एज. क्लियर? अब चलिए हम सेकंड मेथड चलते हैं. अगर आपको कंफ्यूजन है कि इसमें x और y क्यों ना लें, ओके ले सकते हैं आप. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज हमने ले लिया, प्रेजेंट एज हमने ले लिया x ईयर्स, एंड मदर्स एज हमने ले लिया y ईयर्स. मदर्स एज इक्वल्स टू y ईयर्स. देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? मदर is means equals to older than से शुरू करेंगे, than him. Him means रोहन. रोहन्स एज इज x plus 26. क्वेश्चन नंबर 1. ओके यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. चलिए यहाँ आते हैं. ओके यहाँ तक हमने इक्वेशन से निकाला मदर्स एज. मदर इज 26 years older than him. ओके फर्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ. जब भी ये प्रोडक्ट होगा तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट वर्ड हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, ओके. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 3 years. ओके आफ्टर 3 years वहीं रुक जाएंगे हम. आफ्टर 3 years अब आगे बढ़ना नहीं है. जब भी बिफोर आफ्टर जो भी होगा तो हम वहीं पे रुक जाएंगे. आफ्टर 3 years, 3 years के बाद एज रुकेगा नहीं. प्रेजेंट एज ये है, आफ्टर 3 years इसका भी एज बढ़ जाएगा, मदर का एज भी बढ़ जाएगा. ओके तो मदर्स रोहन्स एज विल बी रोहन्स एज क्या बता सकते हो? रोहन्स एज कितना हो जाएगा? अभी प्रेजेंट एज है x, 3 years के बाद कितना हो जाएगा? x plus 3. ओके और मदर्स एज अभी फिलहाल है, प्रेजेंट एज मदर का है x plus 26. ओके आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा उसका? प्लस 3. दैट मीन्स x plus 26 plus 3, 29 years. ओके बाय क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन से इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज. प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज एंड मदर्स एज.
after 3 years. तो after 3 years will be how much? 360. Okay, so Rohan's age is after 3 years, Rohan's age is x plus 3 and mother's age is x plus 29. Clear? Can I solve this one? Okay, x square 3 plus 29x, okay, plus 3 into 29 equals to 360 or x square plus 32x plus 87 minus 360. Clear? Or x square plus 32x minus 273. ओके, अब यहाँ देखिए, अगर आप को नहीं समझ आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, आपने x और y ले लिया, ओके, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो y मिल गया हमें, मदर्स एज फर्स्ट कंडीशन से मिला, मदर्स एज इज, मदर इज 26 years older than him, देन से शुरू करेंगे तो x plus 26, क्लियर? ओके, आफ्टर 5 years, ओके, सेम आफ्टर 3 years, after 3 years, after 3 years, now Rohan's age will become, Rohan's age कितना हो जाएगा? उसका अभी का जो फिलहाल जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, x है, तो 3 years के बाद कितना हो जाएगा? x plus 3. उसी तरह, ठीक है, सिमिलरली मदर्स एज विल बी, मदर्स एज विल बी y plus 3, y plus 3. Okay, by question here Rohan's age and mother's age is x plus 3 and y plus 3 after 3 years, but by question the product term means we have to multiply these two age. Rohan's age is x plus 3 and mother's age is y plus 3. Okay, when you multiply these two age, that should be 360. The product is 360. Okay, here we will substitute the value of y. Y is x plus 26. Okay, so x plus 3, y, instead of writing y, we will write x plus 26 plus 3 equals to 360. Clear? Or x plus 3 into x, 26 plus 3 is 29 equals to 360. When you multiply these two, x plus 3 and x plus 29, x plus 3 and x plus 29, you will obtain the same quadratic equation, that is x square plus 32x minus 273 equals to 0. आपको सेम मिल गया, इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है कि आपने x लिया और y लिया तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो जहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके ओके, हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, हमें मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, दो मेथड है सॉल्व करने के लिए, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने यूज़ किया है, चेक कर लेते हैं पहले. हमने चेक किया तो 273 का जो हमने फैक्टराइज किया तो हमें मिला 3 इंटू 7 इंटू 13. तो जब 3 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 39. ओके, 39 माइनस 7 हमें मिल गया 32, मीन्स ये प्लस और ये वाला माइनस. क्लियर? इसमें से हमने कॉमन लिया x, इसमें से कॉमन लिया -7, तो x प्लस इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया मिला 39. सो x प्लस 39 कॉमन है, इसको बाहर निकाला तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. इससे मिला हमें x इक्वल्स टू -39 और x इक्वल्स टू 7. पता है एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो हमने इसको रिजेक्ट कर लिया और x इक्वल्स टू 7 ले लिया. दैट मीन्स रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 years. रोहन की वर्तमान आयु हमें मिल गई x, लेकिन हमें इसे चेक जरूर करना है, वेरीफाई जरूर करना है. वेरीफाई कैसे करोगे? ओके, रोहन की आयु वर्तमान आयु हो गई 7 years. अब हम चेक करते हैं इसे. ओके, तो चेक में बोल रहा है कि आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स अभी जितना एज है उसका, अभी एज है 7, आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा? 10. ओके,
और मदर्स का एज कितना है? आफ्टर 3 years मदर्स का एज हो जाएगा 7 + 29 36, 7 + 29 दैट इज 36। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आना है 360। तो आंसर आ गया 10 × 36 दैट इज 360, मीन्स हमारा ये वेरीफाई हो गया है, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, इसका आप स्नैप ले सकते हो। ओके, नाउ इट्स होमवर्क टाइम। ओके, स्क्रीन पे देखें, कुछ क्वेश्चंस हमने होमवर्क दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 has been taken from exercise 4.4. First question is find the value of k for each of the following equation so that they have 2 equal roots. निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में से k का मान ज्ञात कीजिए जिसके बराबर मूल हो। First question is 2x² + kx + 3 = 0 and second one is kx × x - 2 + 6 = 0. Second question is the following situation possible? This question has been taken from exercise 4.4, question number 4. Okay. If so, determine their present age. The sum of age of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age was 48. क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। गुणनफल प्रोडक्ट है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द नेचर ऑफ रूट इज गिवन एंड ऑल्सो वी सॉल्व सम एप्लीकेशंस दैट वाज रिलेटेड टू एज। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।